हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लाए हैं आपके सामने खास कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर आधारित। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नैन्सी। थैंक यू निखिल। यस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और देश को किया संबोधित। क्या देश बदल सकता है? क्या सरकार बदलने से देश बदल सकता है? क्या लोग बदल सकते हैं? जवाब है जी हां। हर देशवासी इस बदलाव का गवाह बन रहा है। देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर ओर जश्न है और आजादी के लिए लड़े दीवानों की याद में देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी का ये पहला भाषण। और इस संबोधन पर न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी और भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया गया। यह है 21वीं सदी का भारत। इसमें सामर्थ्य है, हर चुनौती को पार करने का सपना है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो करना है। तो आइए देखते हैं इस घंटे की क्या है हेडलाइंस और उसके साथ। Yes, and before that we wish you a very happy 73rd Independence Day. Yes, we'll in fact bringing you a special broadcast and this will continue in fact for some time at least till afternoon. We'll be getting you in fact Independence Day celebrations from across the country. But first the top stories that we're tracking at this moment. The nation celebrates 73rd Independence Day today, unfurling the national flag from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister Modi says the abrogation of Article 370 is a step that is beyond politics and in the interest of the nation. Says now every Indian can proudly say one nation, one constitution. Prime Minister Modi says now idea of one nation, one election should be debated. Fulfilling a long-pending demand of integrating all the three forces under a unified command, Prime Minister Modi announces creation of the Chief of the Defence Staff. Prime Minister Modi says 3.5 lakh crores will be invested in the Jal Jeevan mission in the coming years. Says it is unfortunate that so many people lack access to water even 70 years after independence of the country. Prime Minister Modi says that tackling water scarcity is the top priority for the government. Prime Minister Modi says population explosion is a huge challenge before the nation. Says people having a small family is also an act of patriotism. The Prime Minister says there is a need to have greater discussion and awareness on population explosion. Prime Minister Modi says $5 trillion economy is every Indian's dream and this dream is very much achievable. Says in the last 5 years, the country's economy has increased from $2 to $3 trillion. President Ramnath Kovind says the recent change in Jammu and Kashmir and Ladakh would give the people access the same rights and the privileges as their fellow citizens in the rest of the country. Addressing the nation, the President says that the laws related to the right to education, the right to information, the abolition of triple talaq and the reservation in education and employment will now be applicable in Jammu and Kashmir. तो आइए देखते हैं कि क्या रही है इस घंटे की हेडलाइंस के बाद, क्या रही है खास खबरें। देश आज आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से देश का हर शहर जश्न ए आज़ादी के रंग में रंगा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराया। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर आम लोग, देश के तमाम नेतागण, वरिष्ठ अधिकारी और विशिष्ट मेहमान मौजूद थे। इस मौके पर खासकर पीएम मोदी के लिए बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना हमारा दायित्व है। नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम समस्या को टालते भी नहीं हैं और समस्या को पालते भी नहीं हैं। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने 70 दिन में कर दिया।
संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस पर फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि 10 हफ्ते के भीतर ही अनुच्छेद 370 35A का हटाना सरकार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए एक कदम बढ़ाना है। 370 के पक्ष में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं, उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्छेद 370, ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? टेम्पररी क्यों बनाए रखा? अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है, आप भी जानते थे ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था। राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्य सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर कोई गर्व से कह सकता है कि हम एक देश एक संविधान का अनुसरण कर रहे हैं। हम सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे ले जा रहे हैं। लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। And in this special broadcast, a special guest are also joining us, Mr. Kamaraga. He's a strategic and security affairs expert joining us in the studio. Thanks, sir, for being with us here on Doordarshan News. Also, Mr. Praful Ketkar, senior journalist, continues to be with us here on Doordarshan News. Thanks to both of you very much for having joined us on the show. Mr. Kamaraga, if I can begin with you, sir. You know, very important messages, very important topics being touched upon on the 73rd Independence Day by the Prime Minister, clearly laying out the vision for a new India, and very important topics, you know, that he's in fact spoken about. Ease of living he spoke about. He said that, you know, there has to be growing understanding amongst each one of us about a bright India, and, you know, in fact also talking about the modern infrastructure, optical fiber network, CDS he mentioned about. So very important subjects that have been taken up in his speech today. Your comments, sir. Yeah, he covered almost all the topics, you know, including tourism and apart from development and other thing, and modernization of forces and reforms which were needed, debated for a very long period of time, you know, and he has also promised the appointment of chief of staff. You know. So these are very important decisions he has announced to the people on this occasion. Apart from this, you know, then he also talked about terror. Yes, absolutely. And its effect on the region. Particularly he mentioned Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, the three main countries Neighbors, which are facing increase in terrorism coming from the same source. He didn't mention the name of yes, Pakistan, absolutely. but he meant that, you know. So that way his speech become very important and cover almost all the aspect of the society. Okay. And okay, he all right, also Mr. Aga. promised Mr. Aga, we are seeing these live visuals of the Union Home Minister Amit Shah. There, in fact, he's going to be unfurling the national flag, and these visuals coming in of the Union Home Minister Amit Shah.
hoisting the national flag in red. Sir, please. Please. The Union Home Minister Amit Shah, who's just hoisted the national flag on the occasion of 73rd Independence Day, and now in fact distributing sweets to the security personnel there on this very special occasion for the entire country. बिल्कुल नांसी, ये जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है ये जन जन तक मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने तक लोग इस स्वतंत्रता दिवस के उल्लास को मना रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। और इसी की कड़ी में अगर देखा जाए तो अभी हमने प्रधानमंत्री के उद्भाषण को सुना है और अब गृह मंत्री अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह उन्होंने मनाया है। And yes, these visuals of the Union Home Minister Amit Shah, who's just hoisted the national flag, and now in fact in a very special and very sweet gesture, Nikhil, the Home Minister distributing, okay, these visuals of the BJP working president, the acting president right now, JP Nadda, who's just arrived there, and in fact in a short while from now he will also be hoisting the national flag on the occasion of 73rd Independence Day. These visuals coming in from the BJP headquarters. बड़ा यूनिक तरीका है जी, मिठाई के yes sir, distribution। yes, आप yes, किसी दुनिया absolutely, में very कहीं आपको sweet, नहीं yeah, मिलेगा। yes, और स्कूलों में बच्चों को and भी acknowledging also, Acknowledging, you know, on this their contribution that they put in day in and day out, acknowledging their efforts, their That's contributions, sir, on this very important day. That means that's a day of immense pride for each one of us.
इसके बाद The माननीय BJP राष्ट्रीय working कार्यकारी president अध्यक्ष जी JP Nadda यहाँ there, who पर, has just hoisted the national flag at the BJP headquarters. सभी He's now meeting with मिठाई all का the वितरण leaders and the ministers there, and in fact exchanging sweets. Nikhil, very special and और very ये sweet. Okay, लाइव these visuals तस्वीरें जो from है नैन्सी, ये जम्मू Yes. और लद्दाख की हैं, जहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उल्लास के साथ, पूरे हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि देश के कोने कोने में ये उल्लास जो है आज दिख रहा है। दरअसल ये कहा जाए तो संक्रमित है, एक जगह से दूसरे व्यक्ति पे इसका उल्लास जी, जा रहा है। yes sir. वहाँ पे एक चीज़ और है, आपकी तिरंगा हर पंचायत पे लहराया जाएगा और उसके लिए अलग समारोह हर पंचायत ऑर्गेनाइज किए गए हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। जी। और कोशिश ये है तिरंगा को पॉपुलर करने के लिए। पहले वहाँ पे absolutely. 2 झंडे थे, अब एक ही झंडा जी बिल्कुल। रहेगा इस 15 अगस्त से और वो तिरंगा ही लहराया जाएगा। In fact, Mr. Raga, we're seeing these very beautiful visuals of children performing there in Jammu. You know, there is a sense of celebration. Mr. Praful Ketkar, if I can bring you in also at this point in time. You know, these visuals show the kind of joy, enthusiasm that these children there in the state are feeling on this very important day for all of us. And like Mr. Raga also mentioned that, you know, this the tricolor that will be unfurled at every panchayat. Very important because you're invoking a sense of patriotism. You're taking patriotism to the ground in every person, each one of us, which is so embedded now to, you know, so that all of us rise to that patriotism, not just on this day, but all through our lives. इसमें एक चीज़ मैं जोड़ दूं इससे पहले कि प्रफुल्ल केतकर जी अपनी बात शुरू करें कि एक देश एक निशान की जो बात हुई थी, शायद वो सपना भी साकार हो रहा है जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में अगर बात करें। जी 1960 के दशक में एक देश एक प्रधान वाला तो ये हो गया था। जी। अब संविधान और निशान, लेकिन जम्मू और लद्दाख के लोगों के दृष्टि से देखें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। एक तरह से दूसरी स्वतंत्रता, With the recent decisions taken. yes, going away of Article 370 and 35A, there was a long-standing demand from Ladakh side to be union territory. For Jammu, the sense of discrimination and lack of opportunities they were perceiving. So it is almost like a second independence for them. And it's a bright beginning for the state. In fact, since morning, the first message that I started receiving about Independence Day, best wishes, where most of them were from the Jammu side of, that shows what kind of enthusiasm. Absolutely. And these pictures are just, a reflection of that mood on the ground, because the kind of injustice, the kind of lack of governance, lack of development that they faced for these many years, despite being integral part of India, they couldn't get the real fruits of the development and the constitutional provisions of India. Now they are, this complete integration has making them realize the the true sense of independence. And that celebration is certainly special for Jammu Kashmir and Ladakh, and that makes it special for rest of India also. Absolutely. Because this integration is a two-way process, and that's why what Prime Minister said about this entire provision, in his typical style, what he said, कि कोई समस्या ना टालना है ना पालना है. So you cannot just keep it lingering on. You cannot procrastinating just the issues that concern all of us. Yes. So that shows the decisive approach of government can lead to fulfilling people's aspiration. Good governance can reach directly to people. That is the real sense of Swaraj that we actually look for. And Mr. Ketkar, when he spoke about governance, very important points you're bringing in this discussion, and he was very categorical when he said that I want governance on the ground.
and he clearly mentioned कि अभाव नहीं होना चाहिए और interference नहीं होना चाहिए. So there has to be this thin line and this balance between apathy and interference. So and that's what good governance is, you know, that the Prime Minister Modi, even in his first term, had laid out the vision in 2014 that there shouldn't be apathy and there shouldn't be too much interference as well. The ease of living, he said, ease of living is just a step towards ease of doing business. He said it's just a step towards the ease of living, and that's the ultimate goal that we all have to achieve. See, he actually laid down a chart for a kind of new partnership for New India. It's a partnership between the government and the society at large. Sure, yes. And there, in fact, one of the key proponents of the ideology that BJP espoused, Pandit Deendayal Upadhyay, he said, his famous quote says, there should not be unnecessary abhav, there should not be unnecessary dabhav. It should be only a prabhav where it is required. So that's the exact thing Prime Minister yes. invoked today. Absolutely. And he, not just invoked but articulated how we can actualize Achieve it in yes. practice. जी बिल्कुल. So unnecessary interference of the government and doing away with unnecessary laws, government level interference, having multiple layers of scrutiny in doing Bureaucracy. business or approaching, getting any document clear at the government level. So it's a very big, of course. And he was also, narrating how he's done that when he spoke about how changes have been made to the laws of the country, how many laws have been done away with, how officials that were not required to work, in various offices, departments of the government of India, they have been told to pack up their bags and go home. So it's he's clearly narrated, is clearly... No, but what he mentioned in this is very important. He said this is an incomplete process. This is not completed yet. 450 laws are gone. In the second term, already 65 laws are done away with. Yes. Many people have shown, the doors, if you can't perform. But while concluding that, he made one interesting passing remark. He said, Bhrashtachar and Bhai Bhatijawad has percolated down in the system. It is not going to change so easily. That has become a mindset. So that's an और acknowledgement. ये भी yes. साथ में कहा कि इससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा, केवल सरकार इससे नहीं लड़ेगी. बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि समाज और सरकार की जो भागीदारी है, उस भागीदारी का एक खाका उन्होंने आज के भाषण में खींचा है. और सबसे खास बात है कि सिर्फ अपनी सरकार की घोषणाएं नहीं थी, बल्कि तमाम आह्वान भी था जनता से, आम जन से, कि जो सामान्य मानवी है वो आए देश के विकास के लिए, वो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से, क्योंकि ये जो अवसर है ये बहुत बड़ा है. देखिए, बहुत लोग बहुत तरीके से इस भाषण को इंटरप्रेट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 15 अगस्त का और लाल किले के प्राचीर से भाषण की सीमा ना होती तो प्रधानमंत्री शायद उसको और एलोबरेट करते. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से वो कहा भी. लेकिन मुझे यदि इसका एक बड़ा टेक अवे यदि के रूप में देखना है तो हम यदि पानी की बात करें, हम स्वदेशी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मुक्त खेती की बात करें, किसानी की बात करें, प्लास्टिक मुक्त व्यवहार की बात करें, तो ये सारा मुझे दिखाता है कि इकोनॉमिकली डेवलप होते हुए भी ग्रीन भारत का सपना हम कैसे संजो सकते हैं. जी बिल्कुल. इसका एक बड़ा प्रारूप आज के भाषण में मुझे दिखता है कि डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी And not टू just, ईच अदर. the first time that लेकर Nikhil, के, not just the first time that Prime Minister Modi has spoken about this, in his various addresses even before today, he's spoken about water conservation, he's spoken about how we all need to become more environmentally oriented, environmental
awareness, and like you also mentioned, he's in fact said that the aim is going to be to come in the top 50 economies of the world, and how now the laying ease out of doing business. The Yes. ranking in ease of doing business has and to also be, $5 trillion economy, as Yes. we're all aware that that's the motto, that's the determination. goal of Okay, the let's nation. get these visuals and let's in fact have the audio up, get a sense of the celebrations coming in from Jammu. तो ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। Okay, the BJP. Okay, Union Minister Nitin Gadkari there, in fact, hoisting the national flag on the occasion of 73rd Independence Day. Nikhil, which has got those visuals. ये जो तस्वीरें हैं देश भर से, और ख़ास तौर पर कमर आगा साहब, आपको इस समय हम लाना चाहेंगे बीच में अपने चर्चा के। जो ये तस्वीरें हम जम्मू से देखी, हमने लद्दाख से देखी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये जो स्वतंत्रता का सूरज आज वहाँ उगा है, ये अपने आप में एक नया प्रभात, नया उजाला, नई किरण, नई रोशनी लेकर आया है इस लिहाज से भी। और आज जो प्रधानमंत्री ने अपने संभाषण में धारा 370 का जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं ये उसी का जो प्रभाव है ये आज दिख रहा है। जो उल्लास है जो चेहरे पर, वो एक नया है, कुछ नई बात है उसमें। हाँ, वो एक नया हर्षोल्लास जिसे हम लोग कहते हैं वो नज़र आ रहा है देखने से। जी, जम्मू से भी और लद्दाख से भी। मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर के बाद हमको श्रीनगर और दूसरी जगहों की भी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो दूसरी सरकार के 70 दिनों में करके दिखाया। जी हाँ, वो उन्हीं ने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि You were mentioning about Srinagar, and let's in fact get these visuals of the JNK Governor Satyapal Malik. These visuals coming in from Srinagar. He's going to be ये hoisting सीधी the तस्वीरें national आप flag. श्रीनगर से देख रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण विजुअल्स हैं नैन्सी। ये अपने आप में बड़े historic. इतिहास Very historic, समेटे हुए हैं yes. अपने आप में। आज जिस तरह से मैंने कहा कि एक नए सूर्योदय, एक नए सूर्य का उदय हो रहा है कई मायनों में। रियासत के गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक ने स्टेज पे आते ही एक कलरफुल कैप पहनी और उसके साथ ही अब वो राष्ट्रीय परचम लहराएंगे। टीवी पे हम अभी करते हैं स्टूडियो में अभी। मेहमान खुसूसी रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कौमी परचम लहराया और अब आज के परेड कमांडर एसएसपी मंजूर अहमद अल्लाल, कमांडिंग ऑफिसर JKAP 9 बटालियन साबित कदमी से बढ़ रहे हैं सलामी मंच की तरफ ताकि वो बाज़ाब्ता दावत दे सकें मेहमान खुसूसी को परेड का मुआयना करने की। परेड कमांडर एसएसपी मंजूर अहमद अल्लाल ने बाज़ाब्ता दावत दी है मेहमान खुसूसी रियासत के गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक को परेड का मुआयना करने की। और अब रियासत के गवर्नर मखसूस जीप में सवार होने जा रहे हैं। गवर्नर मौसूफ जीप में
सवार होने वाले हैं, अभी सवार हो चुके हैं जीप शायद में और कुछ उनके ठीक process पीछे खड़े बाकी है, हैं 2-3 रियासती दिन के पुलिस के अंदर। सरबराह जनाब दिलबाग सिंह कुछ है और उनके प्रोसेस ठीक पीछे खड़े हैं इस मखसूस जीप में आज के परेड कमांडर एसएसपी मंजूर अहमद अल्लाह। मौसम निहायत खुशगवार, जैसा मैंने आगाज में जिक्र किया था कि सुबह से ही सूरज लुका छुपी खेल रहा है और सूरज की लुका छुपी का एक खेल सचमुच इस फजा को और ज्यादा दिलकश और ज्यादा दिलफरेब बना रहा है। मखसूस जीप में सवार मेहमान खुसूसी रियासत के गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक, जो कि अब चंद लम्हों के अंदर बाज़ाब्ता परेड का मुआयना करेंगे और अलाइनमेंट में सबसे पहले बीएसएफ का दस्ता, उसके बाद सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, जेकेएपी, आईआरपी, पुलिस का विमेंस कंटिंजेंट, एग्जीक्यूटिव पुलिस, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता। और एक बात जो काबिल जिक्र है, काबिल गौर है आज की तकरीब के एतबार से, आज की तकरीब के हवाले से, कि आज की तकरीब को कवर करने के लिए मुल्क भर से मीडिया यहाँ पे आ चुका है। मुल्क की मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स से वाबस्ता मीडिया यहाँ पे मौजूद है। मीडिया बेशक पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज जिस तादाद में मीडिया यहाँ पे आ चुका है मुल्क के कोने कोने से, वो यकीनन अपनी मिसाल आप है और यकीनन इस बात का एहसास दिलाता है कि ये तकरीब, यौम आज़ादी की तकरीब मुल्क के हर फर्द के लिए, हर बाशिंदे के लिए, मुल्क से लौ लगाने वाले हर शख्स के लिए किस कदर अहम है। और अब परेड का बाज़ाब्ता मुआयना शुरू हो चुका है। मेहमान खुसूसी रियासत के गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक परेड का मुआयना करते हुए, और परेड में सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता इस कंटिंजेंट से आगे बढ़ता हुआ, और अब इसके बाद सीआरपीएफ का कंटिंजेंट। मखसूस जीप में सवार रियासत के गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक, सीआरपीएफ के बाद यह है आईटीबीपी का दस्ता, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का दस्ता, और आईटीबीपी के बाद अलाइनमेंट में सशस्त्र सीमा बल का दस्ता। मेहमान खुसूसी जनाब सत्यपाल मलिक रियासत के गवर्नर बगौर परेड का मुआयना करते हुए, बारीक बीनी से परेड का मुआयना करते हुए, और यह जेकेएपी का दस्ता, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता, और जेकेएपी के बाद आईआरपी, इंडिया रिजर्व पुलिस का कंटिंजेंट, आईआरपी के बाद विमेंस पुलिस का कंटिंजेंट, उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव पुलिस का कंटिंजेंट, उसके साथ एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का कंटिंजेंट, उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का कंटिंजेंट, और साथ ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिंजेंट। और ये जो फजा में धुन लहरा रही है, ये मधुर धुन, ये मीठी धुन, ये है ब्रास बैंड और पाइप बैंड की। ब्रास बैंड border security force का, So these are beautiful visuals that we are seeing from Srinagar, Jammu and Ladakh. Very beautiful visuals, Mr. Aga, that we have in fact split these visuals into 3 for the benefit of our viewers. And like Mr. Praful Ketkar was also mentioning a short while back, once again a very important message that concerns all of us, and coming on this auspicious important occasion of the 73rd Independence Day that we are celebrating today, you know, how we all need to take a pledge as the responsible citizens of this country that we need to eradicate corruption and nepotism from the society and the country as a whole. That's a very important thing, because of this corruption, because of these problems, our developmental efforts have been suffering, and I think time has come, that we have to eradicate this, and it's a problem, the society should take initiative, the religious leader of the society, the other various section of within the society should take pledge and come forward and eradicate this problem. Only then true development will take place. And Prime Minister has also talked about, the economic development. He mentioned, special mention, time again and again, he said that we have to come up with the 5 trillion economy in the next 3 or 4 years or 5 years time. And that is a very big goal and a big challenge, before the government. And that would be possible, with the involvement of the people, the government, and all of the departments, of the
Secondly, he also talked about that in order to achieve this goal, we have to take a quantum jump. एक बड़ा jump लेना पड़ेगा. This is what he said. Sure. Only then we will be at par with the Europe, the highly developed society in Europe. Or so for that, that's a very important thing he has mentioned. Because the way we are developing, it's Sure. too slow. So take a fast. We have to go on fast track basically. तभी आगे जाके हम कुछ कर एक महत्वपूर्ण बात कमर आगा साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो प्रधानमंत्री ने अपने संभाषण में कही और आज के जो मुख्य बिंदु रहे उसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो घोषणा हुई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? रिफॉर्म्स के तहत ये आया है, क्यों इसकी जरूरत है, किस तरह से आप इसको समझाएंगे हमारे दर्शकों? देखिए, काफ़ी ज़रूरत थी और बहुत दिनों से इस बात पे डिबेट हो रही थी कि एक चीफ ऑफ स्टाफ की ज़रूरत है, एक चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए। और उससे ये रहता है ना, एक कोऑर्डिनेशन में बड़ा आराम हो जाता है, 3 अलग अलग सेनाएं हैं। मोर इफेक्टिव और अब स्वरूप भी बदल रहा है सेना का। जो इस तरह की हमारे पास सेनाएं हैं वो नहीं, बहुत ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड फोर्सेस बनने जा रही हैं, जो कि बहुत ही लीन, थिन एंड मीन कहा जाता है, जिस तरह से होगी, जिसके अंदर ऑटोमेशन बहुत होगा, रोबोटिक्स का इस्तेमाल या लेज़र का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स जो होगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक उसका हेड हो जो उसको पूरी चीज़ों को समझता हो और उसके साथ करे, उसका एक्सपीरियंस, उसकी चीज़ें। तो ये कोऑर्डिनेशन है, एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी, लोग इसके ऊपर बात चर्चा भी हो रही थी। उसके अलावा ये भी है, और भी बहुत से रिफॉर्म्स आने वाले हैं सेना को लेके। हाँ, Okay. Yes, the JNK Governor Satyapal Malik, they are speaking in fact in Srinagar. We'll in fact get that in just a bit. But these very beautiful visuals, Mr. Ketkar, coming in from Jammu, Srinagar and Leh. And of course, Prime Minister has spoken about how the abrogation of Article 370 is not a political move, but in the greater good, in the interest of the nation. So very important is that. And another important topic that I would like to bring up here that concerns all of us is water. That's a basic need of all of us. Water conservation is something that he's often spoken about, and in this direction Jal Jeevan Mission is also. आइए सुन लेते हैं। Yes, JNK Governor speaking. जो उनके जीवन में मायने नहीं रखते थे। ये आश्चर्य की बात है कि चाहे कोई चुनाव हो या अन्यथा, लोगों का ध्यान कभी भी रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों पर केंद्रित नहीं किया गया। इन परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास और समृद्धि में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया है। इससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जम्मू व कश्मीर के निवासियों के बीच देश के शेष हिस्सों के साथ समानता और एकता की भावना आएगी। इस मुद्दे पर मैं जम्मू व कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी पहचान दांव पर नहीं है और न ही इससे छेड़छाड़ की गई है। भारत का संविधान कई क्षेत्रीय पहचानों को पनपने और समृद्ध करने की इजाजत देता है। यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं तो भाषा, संस्कृतियों, धर्मों और समाजों की एक विशाल श्रृंखला दिखाई देगी। इसलिए किसी को इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि उनकी पहचान केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों से समाप्त हो जाएगी। वास्तव में इस अवसर का इस्तेमाल राज्य के पारंपरिक संस्कृतियों, मूल्यों और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। कश्मीरी, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, बाल्टी, शीना और अन्य भाषाओं के लिए नई व्यवस्था में कामयाब होने के अवसर हैं। राज्य की विभिन्न जनजातियों और जातियों जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं था, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। लद्दाख के लोगों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के साथ पूरी हो गई।
इससे लद्दाख के लोग बड़े और कठिनाई वाले इलाके के चलते होने वाली समस्याओं के बावजूद अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। मेरे प्रशासन ने इस वर्ष की शुरुआत में लद्दाख के लिए एक अलग राजस्व और प्रशासनिक संभाग बनाया था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का प्रावधान है। इसके बाद इस संभाग के विभिन्न विभागों के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए 495 पद भी स्वीकृत किए गए। लद्दाख क्षेत्र के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसके लिए वाइस चांसलर नियुक्त किए जा चुके हैं। इससे क्षेत्र के छात्रों को सुविधा होगी, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए लद्दाख से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेह में नए कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी जा चुकी है और कारगिल में एक कॉमर्शियल एयरपोर्ट के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों में अपनेपन की भावना पैदा करने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी तरह का पहला बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया। राज्य के 4500 से अधिक गजेटेड ऑफिसर्स ने पंचायतों का दौरा किया और लोगों की शिकायतों को हल करने के लिए उनके साथ बातचीत की। सभी अधिकारियों को रात्रि विश्राम सहित कम से कम 2 दिन रुकने का निर्देश दिया गया था, ताकि वो गांव में पंचायत प्रतिनिधियों, बड़ों और अन्य समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर सकें और उनकी चिंताओं, जरूरतों और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम की सफलता का स्तर ये था कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 28 जुलाई 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस पहल का विशेष उल्लेख करते हुए इसकी सराहना की थी। राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को सशक्त करना है। बहुत लंबे अरसे के बाद राज्य ने अक्टूबर में शहरी स्थानीय निकाय और नवंबर-दिसंबर में पंचायत के चुनाव करवाए। मुख्य धारा के दलों तथा हुर्रियत द्वारा बहिष्कार के आह्वान और आतंकवादी संगठनों द्वारा मौत की धमकी के बावजूद लोग अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को वोट देने के लिए बाहर निकले। मतदान 74% था। ऐसा उस राज्य में हुआ जहां 2 साल पहले संसदीय सीट पर उपचुनाव भी नहीं कराया जा सकता था। ये सब बिना किसी जान माल के नुकसान के हुआ। आज राज्य में एक जीवंत पंचायत राज और नगर पालिका प्रणाली है, जो धन, कार्यों और कार्यकारियों की पूरी शक्तियों के साथ पूरी तरह से सशक्त है। पंचायतों के दूसरे स्तर की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जल्दी होंगे। मैं सभी निर्वाचित पंचों और सरपंचों से आग्रह करता हूं कि वो इन चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड अपने अपने क्षेत्रों के विकास की योजना और क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे विश्वास है कि ये नवोदित पंचायती राज व्यवस्था भविष्य में जम्मू कश्मीर में बदलाव की अग्रदूत होगी। युवा पीढ़ी परिवर्तन के प्रेरक होते हैं। उन पर राज्य तथा राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेवारी है। इस अवसर पर मैं जम्मू व कश्मीर के उच्च प्रतिभाशाली युवाओं से दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और अपने राज्य जम्मू व कश्मीर को प्रगति और विकास के नए रास्ते पर ले जाएं। हमारी आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमारे सुरक्षा बल उग्रवादियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। सीमा के पार अपने आकाओं के इशारों पर सुरक्षा बलों पर छुटपुट हमले कर उग्रवादियों ने लड़ाई में अपनी हार मान ली है। सुरक्षा बलों के ठोस और समन्वित प्रयासों के कारण उग्रवादियों और उनके समर्थकों के रवैये में परिवर्तन आया है। आतंकवादियों की नई भर्ती में गिरावट देखी गई है, जबकि जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटनाएं भी लगभग समाप्त हैं। भटके हुए युवा वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हमने सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके नतीजे निकल रहे हैं।
मेरा प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों के लोगों की समस्याओं से अवगत है और इसलिए उनके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के समान सीधी भर्ती, पदोन्नति और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रवेश में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह समाज के पहाड़ी भाषी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आरक्षण का लाभ दिया गया। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर पूरा नहीं है। मेरा प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए 6000 में से शेष 3000 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया और घाटी में सेवारत कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मेरा विश्वास है कि घाटी में कश्मीरी माइग्रेंट्स की पूरी वापसी केवल घाटी के नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों के समर्थक और सहयोग से संभव है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ एक सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन साझा करते हैं। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कदम उठाए गए हैं। मेरे प्रशासन द्वारा स्थापित एंटी करप्शन ब्यूरो को 6 पुलिस स्टेशनों की स्थापना और उनके अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना के साथ और मजबूत किया गया है। उच्च स्तर सहित सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एसीबी अथक प्रयास कर रहा है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से आयोजित किया गया और लगभग 30 दिनों की अवधि के दौरान इस यात्रा में 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। ये पिछले 3 वर्षों की तुलना में एक सराहनीय वृद्धि। मैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कश्मीर के स्थानीय लोगों का दोबारा अपने दिल से धन्यवाद करता हूं। अमरनाथ यात्रा और हज को ऐसे तरीके से आयोजित किया गया जो कश्मीरियत और इसके सांप्रदायिक सद्भाव के सच्चे सार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रीनगर और जम्मू शहरों के एकीकृत विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है। श्रीनगर और जम्मू शहर के लिए लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया गया है और इनके शुरू होने के बाद यातायात से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। मेरे प्रशासन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक विस्तार के लिए कदम उठाए हैं। अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई थी। 5 नए मेडिकल कॉलेजों को कार्यशील किया गया है और राज्य को 400 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें आवंटित हुई हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 900 हो गई है, जो कि किसी भी राज्य में एमबीबीएस सीटों में एक वर्ष में सबसे बड़ी छलांग है। उधमपुर और हंडवारा में 2 और मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के सभी राज्यों में जम्मू व कश्मीर को 6 महीने से कम समय में 57% परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी करने में पहला स्थान मिला है। मेरी सरकार केंद्र सरकार की सहायता के अलावा अपने स्तर पर भी पहल कर रही है। हमने कॉलेजों की संख्या 98 से बढ़ाकर 200 करके दुगना कर दिया है। इस विस्तार का एक दीर्घकालिक प्रभाव होगा। हमने 240 से ज्यादा हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा है। ये निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में कमियों को पूरा करने में मददगार होगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है, जिसमें बागवानी का प्रमुख योगदान है। कश्मीरी सेब और अन्य फलों ने पहले ही राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में अपने लिए जगह बना रखी है। सरकार फसल पकने के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना, प्रसंस्करण की क्षमता और नए मार्केटिंग उपायों को अपनाने के माध्यम से इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन को प्रस्तावित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी कदम उठाएगी। इस वर्ष के अंत में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वर्ष के अंत में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में हम इन क्षेत्रों में निवेश और विशेषज्ञता को आकर्षित करने पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और इस क्षेत्र को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेंगे। मेरी सरकार को
सुरक्षा कर्मियों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सामना की जा रही तमाम कठिनाइयों की जानकारी है। इस दिशा में उनके योगदान को देखते हुए हमने जेके पुलिस कर्मियों के कई रैंकों के संबंध में हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाया है। नॉन गजेटेड पुलिस कर्मियों का राशन मनी अलाउंस 2000 से 2500 किया गया है। इसी तरह एसपीओज का मासिक पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मियों को ड्रेस और किट मेंटेनेंस अलाउंस सीधे दिया जाएगा। मेरा प्रशासन अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके वास्तविक मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं और शीघ्र ही विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। निष्कर्ष में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि श्रीनगर और जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि भविष्य में बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, रोजगार और प्रगति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बन रहा है। मैं ऐसे जम्मू कश्मीर को देख रहा हूं जहां महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा और उन्हें पूरे अधिकार मिलेंगे। मैं ऐसे जम्मू व कश्मीर को देख रहा हूं जहां शरणार्थियों और सफाई कर्मचारियों को पूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं ऐसे जम्मू व कश्मीर को देख रहा हूं जहां केंद्रीय कानून और योजनाओं का लाभ सबको मिल सकेगा। मैं ऐसे जम्मू व कश्मीर को देख रहा हूं जहां पंचायती राज संस्थान और अर्बन लोकल बॉडीज लोकल सेल्फ गवर्नेंस के साधन बनेंगे। मैं एक बार फिर राज्य के युवाओं से खास अपील करना चाहता हूं कि वो आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, शिक्षा, खेलकूद और सारी चीजों के साथ साथ वो प्रदेश की राजनीति भी संभालें और अपने प्रदेश को आगे ले जाएं और देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेहमान खुसूसी रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तकरीर फरमाई। परेड कमांडर एसएसपी मंजूर अहमद दलाल की दहाड़ के साथ ही मार्च पास्ट का आगाज हो चुका है और मार्च पास्ट में सबसे आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का दस्ता। असिस्टेंट कमांडेंट तनुश्री तारिक की क़यादत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और अफसरान भारत जैसे वसीअ व अरीज मुल्क की वसीअ व अरीज सरहदों की मुहाफिज फोर्स, जो कि हर पल हर घड़ी तनदही से अपने फराइज अंजाम देती है, फकत इसलिए कि इस विशाल मुल्क की विशाल सरहदों के अंदर रहने वाले 1 अरब 25 करोड़ से ज्यादा अवाम को चैन की जिंदगी नसीब हो, अमन की जिंदगी नसीब हो। परेड कमांडर एसएसपी मंजूर अहमद दलाल साबित कदमी से सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए उनके पुररौब चेहरे पर जलाल के तासुरात, और अब वो सलामी मंच के करीब आ रहे हैं। उनके हाथ में शुजाअत की अलामत चमचमाती हुई तलवार, निहायत ही खूबसूरत ढंग से सलामी पेश करने के बाद मंच से आगे बढ़ते हुए और उनके ठीक पीछे हैं आज की परेड के सेकंड इन कमांड डीवाईएसपी आबिद रशीद मीर,
जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 4वीं बटालियन से है, बड़े पुरतपाक अंदाज से सलामी पेश करने के बाद अब मंच से आगे बढ़ रहे हैं। और ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट, BSF का कंटिजेंट, असिस्टेंट कमांडेंट तनुश्री तारिक की क़यादत में। गालिबन ये पहला मौका है जम्मू कश्मीर में कि जब BSF के कंटिजेंट की क़यादत एक खातून कर रही हैं, और BSF कंटिजेंट ने सलामी पेश करने के बाद अब मंच से आगे बढ़ना शुरू किया है। BSF के बाद जो कंटिजेंट आ रहा है ये है CRPF का दस्ता, CRPF का कंटिजेंट, असिस्टेंट कमांडेंट महेश भारती की क़यादत में। CRPF जो कि मुल्क की अंदरूनी सलामती की फोर्स है और निहायत तनदेही से अपने फराइज अंजाम देती रही है ताकि लोगों को अमन सुकून नसीब हो। और CRPF के बाद यह है ITBP का दस्ता, असिस्टेंट कमांडेंट अंकुश कुमार की क़यादत में, हमारी मुल्क की सरहदों की एक और मुहाफिज फोर्स जो कि अपने फराइज हर वक्त हर घड़ी जाफिशानी से अंजाम देती रही है। और अगली आवाज माइक्रोफोन के मेरे साथी मोहम्मद इस्माइल की, जो कि मार्च पास्ट का आगे का हाल आपको सुनाएंगे। हिंदू चाइना सरहदों के मुहाफिज, उनके बाद SSB सशस्त्र सीमा बल, और उसकी क़यादत कर रहे हैं मनीष कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। मणिपुर, राजस्थान, आसाम, बंगाल जैसे शुमाल मशरक़ी सरहदों की हिफाजत करते हैं सशस्त्र सीमा बल। और उसके बाद जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, जम्मू कश्मीर महकमे पुलिस के मुख्तलिफ कंटिजेंट्स में सबसे सहरी फहरिस्त जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का ये कंटिजेंट है। शकील उर रहमान DYSP इसकी क़यादत कर रहे हैं। अहम तनसीबात पर मामूर होते हैं, अस्कार ड्यूटियाँ देते हैं, अंदरूनी सलामती पर मामूर होते हैं, देश के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। इंडिया रिजर्व पुलिस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर कायम की गई ये फोर्स है। गुलजार रशीद DYSP इसकी क़यादत कर रहे हैं। दाने देख का मुजाहरा करता हुआ ये कंटिजेंट मंच के सामने से मेहमान खुसूसी को सलाम पेश करता हुआ चला गया। और ख़वातीन पुलिस का दस्ता है। इसके बाद फरहा निशात DYSP इसकी क़यादत कर रही है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े तरूं। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस मुजरिमों का कला कमा करते हैं। हिमायू मुजम्मिल भट्ट DYSP इसकी क़यादत कर रहे हैं। जुर्म की रोकथाम करते हैं, मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाते हैं, समाज में अमन सुकून बनाए रखते हैं। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स शौकत अहमद DYSP इसकी क़यादत कर रहे हैं। फायर फाइटिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस बामल आते हैं। नागहानी आफात और आफात इंसानी अफजाई के दौरान समाज के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। राहत कार्य का So there we heard the J&K Governor Satyapal Malik there, who's in fact spoken on many important subjects. Dr. Chaturvedi, in fact Dr. Sachin Chaturvedi is joining us at this point in time as well. He's the DG RIS. Thanks very much sir for being with us here on this special broadcast on this very important occasion for all of us. So important takeaways, like he was also mentioning about the investment summit, and that's going to be very important for the state there, Dr. Chaturvedi, especially after the recent decision taken in the interest of the nation vis-a-vis the abrogation of Article 370, because that's going to give a sense of in fact strengthen the economy. That's the economic point of it, but also a sense of confidence for the state, the people there, and create more and more employment opportunities. That's absolutely right. It very much reflects the broad contours of the message that Prime Minister gave this morning in terms of localization of the development and catering to the larger aspirations which are emanating out of the larger public expectations from the government. So what Governor has said is very much in sync with what Prime Minister was speaking from the Red Fort in terms of how we bring in local production, how we bring in and energize the local economy, and I think the Governor was enumerating several ways in terms of putting more vitality to the local economy. He also mentioned in fact that the number of colleges and universities have been doubled. Absolutely, so has gone up that drastically, reflects how the youth, which was stone pelting till few days back,
is now getting new opportunities and new And how possibilities education through remains a investment. cornerstone of Exactly. the administration in the state. That's right, absolutely right. And I think that would, because as of now, if you see the students who are migrating from Kashmir for educational institutions across the country, Has I think reduced. would have the local opportunities Yes, there absolutely. itself. Yeah. जी बिल्कुल। अगर इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो भाषण की बात की जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर ईज ऑफ लिविंग तक लाने का एक मंजिल की बात कही है और कहा यही सपना है और इसी को आगे लेकर जाना है। और चाहे इसके लिए ढेर सारी उन्होंने जो बातें लेकर आए, बहुत सारे बिंदु उसमें लेकर के आए कि किस तरह से जो आर्थिक का ये जो इस वक्त का जो दौर है, इससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। जो हमारे युवा हैं उनको देखना है, जो हमारे व्यापारी हैं उनको देखना है, जो निवेशक हैं उन सबको इसमें एक आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री ने जब विकास के सतत गोल की तरफ भारत को समर्पित किया, तब हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को पीछे छोड़ा, जिसमें क्वांटिटेटिव थे, इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतने हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री ने 2015 के बाद में उस नैरेटिव को बदला और हमने क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव की तरफ एक छलांग लगाई है। तो जो प्रधानमंत्री ने आज कहा वो 2015 से जो सतत नीतिगत परिवर्तन होते रहे हैं, उसके बारे में ही प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम क्वालिटी की ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे। उसमें स्वच्छ हवा हो, उसमें केमिकल्स का उपयोग Reduced कम use हो, of प्लास्टिक plastic का bags, यूज कम yes, हो। very तो important. ये जो छोटे छोटे स्टेप्स आज प्रधानमंत्री ने Water जिसका जिक्र किया, conservation, जल स्वच्छ जीवन भारत, मिशन। तो ये सब चीजें उस क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हमको लेके जाती है, जिसका आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। जी बिल्कुल। जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की बात कही, देश को छलांग लगानी होगी, विश्व मानकों के बराबर पहुंचने की बात कही कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। और इसमें एक विशेष उल्लेख करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी बात कही कि 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले वर्षों में। और यानी कि चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्रिजेस हो, रोड्स हो, उन सबको एक नई दिशा तक, और आपने जैसा कहा कि क्वांटिटेटिव से आगे बढ़कर क्वालिटेटिव तक, विश्व मानकों के स्तर तक ले जाने की बात। बिल्कुल। और इसमें प्रधानमंत्री ने दो बातें और कही हैं, जैसा हम लोगों ने कहा कि लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक एक्सपोर्ट हब बनने की बात, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा सुझाव है जो जापान और थाईलैंड जैसे देश कई वर्षों से कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि क्यों हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल हब के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट सामने लेकर के ला करके रखें। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुझाव प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। और अगर हर राज्य इस मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है तो ये एक सफलता हमें हर स्तर पर मिलेगी। और तभी जो प्रधानमंत्री ने दो बातें कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इन सारे मेजर्स के तरह आप गरीबी को कम करिए, लेकिन दूसरा, जो वेल्थ क्रिएशन में मदद कर रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका सम्मान हम करें, उनको इस निगाह से न देखें कि वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो ये जो एक हीन ग्रंथि इंस्पेक्टर राज के दौरान इस देश में विकसित की गई कई वर्षों तक, प्रधानमंत्री ने आज उस पर सीधा प्रहार लाल किले से किया है। जी, एक और बात नैन्सी, मैं प्रफुल्ल केतकर साहब से समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ढेर सारी बातें गिनाई, सिर्फ यही रहा बल्कि नए सपने भी दिखाए। ये भी बताया कि सिर्फ बात केवल 15 लाख घरों तक पानी पहुंचाने की बात कही, 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने की बात कही, और इसमें सब में सबसे बड़ी बात है कि सामान्य लोगों को साथ चलने की बात कही है। देखिए, इसमें एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने जैसे कहा कि आज के भारत के एस्पिरेशंस बदल गए हैं। जी, मिजाज बदला है लोगों का कि भाई रेल लाइन बिछती थी, नया स्टेशन बनता था, स्टॉपेज के लिए मांग करते थे, तो आप 5 स्टार स्टेशन बनाकर भी अब हवाई अड्डा कब आएगा ये पूछने वाली मानसिकता हो गई है। जी, तो उस मानसिकता के साथ क्या गवर्नमेंट चलाने की मानसिकता वो कितना मिनिमम हो और लेकिन फिर भी प्रभावशाली हो, तो सरकार कितनी असरकारी है दोनों अर्थों से, उसका यदि अनुभव करना। इसलिए डेवलपमेंट की जब उन्होंने बात की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने केवल रोड्स की बात नहीं की, उन्होंने रेलवे या एयरपोर्ट्स उनकी बात नहीं की। उन्होंने जो 3 इंपॉर्टेंट बिंदु गिनाए, क्लीन एनर्जी,
गैस ग्रिड, ई मोबिलिटी। मुझे लगता है कि नया भारत का जो उन्होंने आज एक पिक्चर हमारे सामने खड़ा किया है वो विकसित भी हो, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरी तरह से ग्रीन भारत हो, सस्टेनेबल भारत हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसको एक जोड़ने वाला धागा हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि भारत विकसित तो करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज हो, गांव के हर रिसोर्सेस के, मेरी आवश्यकता मेरे गांव में पूरी हो रही है, उसके उतनी गांव में पूरी करे, उसके सिवा तहसील में जाए। वो तो मतलब वो राज्य के स्तर पर आते आते रुक गए कि भाई इसके आगे शायद जाने की जरूरत ना पड़े, उसके बाद फिर आप बाहर भेजने की सोचे। तो मुझे लगता है दिस इज अ कंप्लीट शिफ्ट इन अप्रोच कि हम एक, हमारी मानसिकता हो गई है कि जो इंपोर्टेड है वो अच्छा है, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं क्या, और उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी का जो सोल है। And then in your experience, Mr. Ketkar, you're bringing up a very important point, and like Dr. Chaturvedi was also saying, how there needs to be a localization of development and development goals. Each of us need to be developed. In the next 5 years, in this term of Modi government 2.0, how is this going to trickle down? On the ground, what are you seeing from your experience? What steps are you anticipating that some this of goal the is steps achieved? have already undertaken. Some of the fruits we have seen, like the kind of hub that is being developed in Moradabad, or for that matter, even the entire highway that is being constructed in the hilly areas. There also, the local handicrafts, the local entrepreneurs are allowed. There is a on highways there is a special zone for each district to display their speciality, to sell their products. Now this is a very innovative approach to bring in development, tourism, religious tourism, and entrepreneurship together, and make it a complete package. That has already started. Now this was done more on a kind of experimental basis. Now it will have to percolate down in many parts, and that's why he specifically mentioned that can we take a target in next 3-4 years that we will visit at least 15 tourist destination as a family. We will visit 15 tourist destination in next 2-3 years. So the idea is basically not to have one or two or tourist. Okay, Mr. Ketkar, we just have to in fact go across to these visuals and have the audio up. These celebrations taking place in Srinagar on the 73rd Independence Day today. Thank you.
सीधी तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, किस तरह से उत्साह उल्लास हर्ष के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर श्रीनगर, जम्मू और जो लद्दाख की जो तस्वीरें हैं वो हर्षित करने वाली हैं, वो प्रसन्न करने वाली हैं। एक नए सूर्य का उदय हुआ है, अगर कहा जाए आज की इस आज़ादी के सूर्य के साथ तो गलत नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने जो अपना उनका संभाषण था उसमें उन्होंने धारा 370 का विशेष तौर पर उल्लेख किया और कहा कि जिस तरह से एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ इन राज्यों को इनका जो लाभ है वो देने की कोशिश की गई है, वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। Yes, absolutely. In fact, we would like to discuss once again what we were discussing earlier, and I would like to take your comment, Dr. Chaturvedi, how, also we were discussing how there needs to be a localization of development, and that's what even Prime Minister Modi said in his speech today. In your experience of having so closely worked with the developing countries as the DG of the RIS, what would you like to share with us? How is this thought and how are these measures going to trickle down, percolate down to make sure that not just the entire country or states, but each district, each village is developed and basic necessities become more available to the people of the country? That's absolutely right. As you heard Prime Minister today mentioning about optical fiber network across the country, reaching that out to the villages. He mentioned about 2022 as the target year when optical fiber networking should be completed. The idea is to have the big data generated at the village level. As of now, the whole statistical system largely rests on national aggregations, and as a result, the development goals, their prioritization, allocation of budget, and implementation of programs at the district, local level is a humongous challenge, because then everybody tries to play around with that. So PM wants complete transparency, complete accountability, and as Mr. Ketkar very rightly said, the thin government that is required. So with this one revolution, you are heading towards it. At the larger global level, if you see, more and more governments that have moved forward, like PM today gave one district, one product, which Thaksin Shinawatra in Thailand had introduced this program, which actually was in 1960s a major program of Japan, when each district administrative unit of Japan had introduced this program. So over the years, it has become one standard program in terms of how local productions can be hooked on with the global markets. The second thing that I think he has made is in terms of the larger national perspective, but very much targeted on the local level, when he was saying the idea of one nation, one tax, one nation, one grid, one nation, one mobility. And of course, from today, as you were very rightly saying, the kind of celebration we are seeing in Kashmir, with the very idea of one nation, one constitution. So that way, I think the several ones that he connected with one full country, it reflects the national view, it reflects the localization of developmental aspirations and their realization. And second is in terms of providing infrastructure which it needs to sustain that momentum. And then I think more efforts, as he said, in terms of bringing in the 100 lakh crores, which was the budgetary announcement for infrastructure. And there the quality of infrastructure he has emphasized on, and not one with huge carbon footprints. So how you reduce carbon footprints in infrastructure generation is, I think, absolutely important. जी डॉक्टर चतुर्वेदी, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस, प्रधानमंत्री ने ढेर सारी महत्वपूर्ण बातें बड़ी दिलचस्प तरीके से, बड़ी प्रभावी ढंग से कही। जो लोकलाइजेशन की बात हुई, प्रधानमंत्री ने यह भी जोड़ा कि किस तरह से, और बल्कि कहा जाए तो आह्वान किया, जिस तरह से स्वच्छ भारत का उन्होंने आह्वान किया था, इस बार उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से क्यों ना सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का आह्वान किया जाए, किस तरह से उससे दूर आने की किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने व्यापारियों का भी आह्वान किया, और बड़े ही दिलचस्प तरीके से कि आज नगद कल उधार, ये दुकानों पर मेंशन रहता था, अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें, कुछ इस तरह से तकरीरें लिखें, कुछ इस तरह की बात कहें, और इस तरह से जन आंदोलन बनाएं कि डिजिटल पेमेंट आगे बढ़े। किस तरह से जो ये चीज है, किस तरह से आप देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं जन आंदोलन छेड़ने की बात प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से कही? देखिए, जन आंदोलन तब आगे बढ़ सकता है जब उसमें, जिसको हम कहते हैं इंडोजिनिटी हो, उसमें एक स्थानीय सार्थकता हो।
रुपए पेमेंट का जो हमने एक सिस्टम अपनाया है, वो जो विदेशी कार्ड का जो एक सिस्टम देश के अंदर पिछले वर्षों में बढ़ गया, और जैसे जैसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ा चंक हम देश के बाहर रॉयल्टी पेमेंट्स में उनको या कमीशन पेमेंट्स में उन लोगों को भेजते हैं। तो पिछली सरकार में ये प्रयास हुआ पहली बार कि हमने रुपए कार्ड यहाँ लेकर के आए। आज प्रधानमंत्री ने जो डिजिटल का कहा, वो जन आंदोलन लाल किले से कहने के लिए वो बिल्कुल सही शब्दों का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाके देखें तो असर उसके ऊपर है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारे हैं, अभी कितने लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री के कहने पे ही जो सेंट्रल बैंक है उसने स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव तैयार किया है। तो हम क्या डिजिटलाइजेशन जो हम हो रहा है उसमें लोकलाइजेशन कैसे हो, और ये जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है ये बड़े जो कंपनीज के चुंगल से कैसे निकल करके देश के हित में काम करें। तो जो रुपए का आज प्रधानमंत्री ने नाम लेकर के उदाहरण दिया है, वो उसी डिजिटल क्रांति की तरफ है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जन आंदोलन की तरफ है, तो जन आंदोलन वो तब बनेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दिया जाएगा, तो इसी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से वो जन आंदोलन सस्टेनेबल बन पाएगा। तो रुपए कार्ड के कमर्शियलाइजेशन, उसके एक्सपेंशन में जितनी जन भागीदारी आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी उतना ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने दोनों विषयों की आज बड़ी खूबसूरती से चर्चा करी। जी प्रफुल्ल केतकर साहब, एक और महत्वपूर्ण विषय जो आपके सामने रखना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज कही, बहुत सारे फोरम से, बहुत सारे मंचों से प्रधानमंत्री और भारत इस बात को कहता रहा है, आतंकवाद से लड़ने की जो इच्छा शक्ति है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो कम नहीं होगा, और आज इस बात को फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया। देखिए, इसमें दो डायमेंशन स्ट्रेटेजिकली हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक तो पूरे भाषण में कहीं पे भी उन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल बड़ी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है पहली बार भारत में किसी प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ये उतना ही हिस्टोरिक है जितना 2015 में बलूचिस्तान का मेंशन था। जी। तीसरी बात, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये हमारे साथ साथ उतने ही आतंकवाद के शिकार है और उनका सोर्स समान है। इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमने प्रूव किया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी। तो मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति का, और खास करके आतंकवाद विरोधी जो एंटी टेररिज्म का जो एक नैरेटिव काउंटर टेररिज्म का भारत ने खड़ा किया है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म केवल मिलिटरीली नहीं लड़ा जाता। आतंकवाद की लड़ाई ये पूरी की पूरी मानवता के विरोध में लड़ाई है। तो मानवतावादी सारी शक्तियों को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये मैसेज केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, ये ग्लोबल मैसेज है। उस ग्लोबल स्ट्रेटेजी का ये केवल आर्टिकुलेशन आज हुआ है, स्ट्रेटेजी पहले से इंप्लीमेंट हो रही है। मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन, टेरर एज अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मुझे लगता है कि ये आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नीतिगत विषयों में जब हम ट्रांसलेट होते हुए दिखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का प्रभाव विश्व में और बढ़ता हुआ दिखेगा, और आतंकवाद के विरोध की जो लड़ाई है, मुझे लगता है उसको भी एक नई दिशा इस नैरेटिव के कारण मिलेगी। बिल्कुल। Okay. All right, yes, very important topics and very important subjects that Prime Minister Modi in fact spoke in his speech on the occasion of 73rd Independence Day. Yes, Prime Minister Modi once again strongly justified his government's decision to enact a law banning triple talaq, adding that when the nation can unitedly fight against social evils such as dowry and female feticide, it can also condemn a practice like triple talaq. The Prime Minister said that earlier Muslim women were constantly living under the fear of triple talaq. He added it was essential to criminalize triple talaq in order to empower the Muslim women to actively participate in the development of the country. हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था।
हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोड़ने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि 3 तलाक जैसे निर्णय राजनीति के तराजू में तौलने के लिए नहीं होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों का मिजाज बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 के बाद देश भर में लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। लोग सोचते थे क्या ये देश बदल सकता है, क्या सरकारें बदलने से देश बदल जाएगा। एक निराशा जन सामान्य के मन में घर कर गई थी। लंबे कालखंड के अनुभव का यह परिणाम था। आशाएं लंबी टिकती नहीं थी, पल दो पल में आशा और निराशा के गर्त में डूब जाती थी। लेकिन जब 2019 में देशवासियों का मिजाज बदल चुका था, निराशा आशा में बदल चुकी थी, सपने संकल्पों से जुड़ चुके थे, सिद्धि सामने नजर आ रही थी और सामान्य मानवी का एक ही स्वर था, हां मेरा देश बदल सकता है। And Prime Minister Narendra Modi had a special mention on the efforts to conserve water. From the ramparts of the Red Fort, he announced a mammoth exercise that is the Jal Jeevan Mission, encompassing various aspects of water conservation and ensuring availability of water to citizens of this country. The scheme envisages a dedicated provision of 3.5 lakh crores in the coming years. हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। निश्चित तौर पर ढेर सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर प्रधानमंत्री ने अपनी साफगोई से बात रखी, लोगों का आह्वान किया। सरकार क्या कुछ कर रही है ये तो बताया ही, साथ में लोगों को जोड़ने की भी जरूरत से बात कही, बड़ी घोषणाएं भी की, जल जीवन मिशन की बात कही, साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसकी भी बात कही। यहाँ पर प्रफुल्ल केतकर और डॉक्टर चतुर्वेदी को लाते हैं इस डिस्कशन में। प्रफुल्ल केतकर साहब, जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कही, एक बड़ा परिवर्तन है, किस तरह से इसको देखते हैं? ये एक बड़ा डिसीजन है, बहुत सालों से, लगभग कारगिल रिव्यू कमेटी के समय से और उसके बाद 3-4 महत्वपूर्ण जो भी रिव्यू कमीशंस डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में बने, उन्होंने सब ने इसकी बात की थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पूरी राजनीति में
जो आज रक्षा से जुड़े हुए सारे विषय हैं उनका स्वरूप बदल रहा है जी। कोऑर्डिनेशन की अलग अलग समस्याएं आती है। साइबर जो वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसने ये समस्या और कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। ऐसे में केवल आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इनके चीफ आपस में तालमेल रखे इतना पर्याप्त नहीं है। इनके कोऑर्डिनेशन के अबोव एक गवर्नमेंट लेवल पे, डिफेंस लेवल पे एक हेडक्वार्टर लेवल का प्लानिंग, चाहे वो प्रोक्योरमेंट के लिए हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर हो, चाहे वो मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में हो, चाहे वो नई सिक्योरिटी नीड्स को एड्रेस करने वाली फोर्सेस क्रिएट करने के बारे में हो। तो मुझे लगता है ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट 2017 में जब जनरल शेखटकर कमेटी बनी थी तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था। और उस समय भी तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये एक तरह से कमिटमेंट दिया था कि हम किसी भी हाल में आने वाले 2 साल में इसको आगे लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसी की पूर्ति आज की इस घोषणा से हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था। हमारी सुरक्षा और रक्षा नीति इन दोनों को लॉन्ग टर्म में प्रभावित करने वाला निर्णय ये साबित होगा। Okay. Dr. Chaturvedi, like we have been talking about the Jal Jeevan Mission and also the water conservation. One of the important decisions and one of the important measures, initiatives announced today on from the ramparts of the Red Fort. Again, how closely you have worked as far as these essential resources are concerned for developing countries. And if we have to come at par with the developed countries, we have to see ourselves becoming a $5 trillion economy in the top 50 as far as ease of doing business is concerned. And that's a vision that has been laid out by Prime Minister time and again. How important you think these steps are going to be in the years to come for our country, where water conservation, Jal Jeevan Mission, reducing the use of plastic bags is concerned, affecting our daily life? See, 2 points are extremely important that Prime Minister mentioned. One, when he was talking about the Jal Jeevan Mission, he also talked about per drop more crop. Now, what is happening in our water sort of management system are these various ministries. Agriculture Ministry has their own approach on water. The ministries that are dealing with the general irrigation have different approach to it. So Prime Minister's message is absolutely clear that all these agencies have to come together in a mission mode that he pronounced today. So Jal Jeevan Mission that way converges the various ministries' perspective in terms of one resource management. That I think is important. The second point that Prime Minister said, in last 70 years, the economy could reach up to 2 trillion. In last 6 years, we have added 1 more trillion to it. Now, if we have to go towards 5 trillion by 2024, you require more of localization. You require more of consolidation of the energy. So from that perspective, I think it's absolutely clear that he is bringing in people and people's participation and asking government also to work across departments and ministries and converge their action. जी, प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर चतुर्वेदी की, लोगों का मिजाज बदला है। अब लोग सिर्फ सड़क की बात नहीं करते हैं, अब उस शानदार हाईवे की बात करते हैं। अगर अच्छा 5 स्टार रेलवे स्टेशन मिलता है, जैसा कभी केतकर साहब ने कहा, तो वो एयरपोर्ट की बात करते हैं। इसी कड़ी में अगर बात कहें तो 100 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही। किस तरह से इसको देखते हैं, सड़क, पुल, और वो भी सबसे खास बात है कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं नहीं, बिल्कुल सही है। जैसा प्रधानमंत्री ने आज भी कहा और पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि अब हमें जो जीवन की जो क्वालिटी है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है और उस क्वालिटी की अपेक्षा रखना जिसमें साफ हवा हो, साफ पानी हो और सभी के लिए जॉब की जो बात हो रही है, वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तभी मिल सकता है जब आपकी इकोनॉमी एक तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें सबकी भागीदारी है। तो एक्सक्लूजन्स कम हो, इंक्लूजन्स ज्यादा हो और वो इंक्लूसिव इकोनॉमी सबके लिए जॉब क्रिएट कर पाए और फिर हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सामने ला करके रखें, तो ये दोनों चीजें एक साथ हो तब हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज वही बात रखी है कि इसमें राज्य सरकारें भी सामने आए, स्थानीय प्रशासन सामने आए, यहाँ तक कि उन्होंने नगर पालिका और पंचायत तक को कहा कि आप भी आगे आइए। जी,
बिल्कुल। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा आज प्रधानमंत्री का संभाषण इस लिहाज से भी कि सबका साथ, सबका विकास और साथ ही साथ सबका विश्वास। अपने भाषण में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जो विकास के मानक हैं वो लोग आगे आएंगे और उनके साथ जब आम आदमी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसको सच करने के लिए प्राणपण से प्रयास करेगा तो भारत विकसित बनेगा। Yes, absolutely. And with that, we have to wind up this edition of the broadcast. And thank you very much, Mr. Ketkar and Dr. Chaturvedi for joining us on this special broadcast. But we're taking a break at this point. But in fact, our special broadcast will continue on the other side. Stay with us.